السلام علیکم. آ چکے ہم لوگ ایک اور نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ. اور ابھی جس ویڈیو کے اوپر ہم لوگ ریئیکٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے 1947 انڈیا، مطلب ہاؤ انڈیا لک ان 1947. تو اس ویڈیو کی ریکویسٹ آئی تھی اور کامنٹ سیکشن سے ہی ملی تھی. خیر، اگر آپ لوگ بھی کوئی ویڈیو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں، نہیں تو انسٹاگرامس کے ہم دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، وہاں پر آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہو. اس ریئل ویڈیو کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور اس کے علاوہ نہیں، میں چینلز کا بتانے لگا تھا. لارا کے چینل کا لنک بھی آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کو بھی ضرور سے سبسکرائب کرنا ہے. اور میرا ولاگنگ چینل بھی ہوگا ڈسکرپشن میں، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. کبھی کبھی ہم بھی ولاگ ڈال لیتے ہوتے ہیں. تو لیٹس گو، اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی دیری کے. 200 سالوں تک ہماری سونے کی چڑیا کے سنہرے پنکھ ایک ایک کر کے اکھاڑ دینے کے بعد انگریز تو چلے گئے، پر اپنے پیچھے چھوڑ گئے ایک ایسا دیش جس کی 70% سے بھی زیادہ یار یہ بات مجھے اس کی صحیح لگتی ہے کہ یہ بندہ اسی کو مطلب ٹھہراتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، قصوروار، جو ہے اصل میں قصوروار. سنکھیا غریبی اور بھوک مری سے جوجھ رہی تھی. اسکول میں گنت سیکھنے کے بجائے بچے راستوں پر کھانا ڈھونڈنا سیکھ رہے تھے، جس وجہ سے بھارت کے 88% لوگ ان پڑھ تھے. اور جس دیش کی ارتھ ویوستھا انگریزوں سے پہلے 27% ہوا کرتی تھی، اسے پوری طرح نچوڑ کر انگریزوں نے 3.9% پر لا کر چھوڑ دیا تھا. آزادی تو مل گئی تھی، پر اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اسے چکاتے چکاتے بھارت کو 70 سالوں سے بھی زیادہ سمے لگ چکا ہے. پر اپنے اس کالے دور کو پلٹنے کا بھارت نے ٹھان لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جس دیش کو انگلینڈ نے اپنگ غریبی میں چھوڑ دیا تھا، اسی دیش نے 2019 میں انگلینڈ کو اکانومک گروتھ یعنی آرتھک وکاس کی لسٹ میں پیچھے چھوڑ دیا. اور جس کے بعد مانو بھارت کی روخ ایک دم سے بدل گئی. جہاں 70% آبادی غریبی میں جی رہی تھی، آج وہیں پر وہ آبادی کم ہو کر 20% ہو چکی ہے. آج 77% بھارتیہ پڑھے لکھے ہیں، جس وجہ سے بھارت پوری دنیا میں انگلش بولنے والا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے، اور پہلا ہے امریکہ، جیسے آپ کو پتا ہوگا. بٹ سوچو، ہم نے انگریزوں کو ان کی ہی بھاشا بولنے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ جس دیش کو اتنی بری حالت میں انگلینڈ چھوڑ کر گیا تھا، آج اسی دیش نے انگلینڈ کو ہر شیتر میں اتنا پیچھے کیسے چھوڑ دیا ہے؟ اور اگر ہم اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ بس کچھ ہی سالوں میں بھارت دنیا کا اگلا سپر پاور بن جائے گا؟ ہیلو فرینڈس، میں ہوں گورو. اور اگر آپ انڈیا کی اور چائنا کی بھی ایک طریقے سے ہم لوگ ریس کہہ سکتے ہیں اس دوڑ میں کہ سپر پاور بننے کے لیے. لیکن امریکہ اس ٹائم پہ اتنا اس طریقے سے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ڈیگریڈ کرتا ہے. سارے سوالوں کا جواب اور انڈیا کی اس ترقی میں کس کا ہاتھ ہے، یہ جاننا چاہتے ہو تو بنے رہو میرے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک. اور بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ٹوڈیز ویڈیو ٹائٹلڈ انڈیا 1947 میں کیسا تھا ورسس آج کیسا ہے. 1947 کا وہ سال نہ تھوڑا عجیب تھا، کیونکہ کچھ سال پہلے ہی جو لوگ آزاد بھارت چاہتے تھے، وہی لوگ اب دو ملکوں کے لیے نعرے لگانے لگے تھے. ایک طرف بھارت کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، اور وہیں دوسری طرف ورلڈ وار 2 میں لڑنے والے انگریزی سینکوں کو برٹشرز بھارت کا سارا پیسہ اور اناج بھیج رہے تھے، جس کے کارن عام لوگوں کو تو چھوڑو، اناج بنانے والوں تک کو اناج کا ایک دانہ نصیب نہیں ہوتا تھا. ورلڈ وار 2 تو انگریز جیت گئے، پر بھارت میں ہونے والے مسئلوں پر قابو نہ پانے کے کارن انہوں نے بھارت کو گھائی میں 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور پھر دونوں بھی دیشوں کو اپنے ہی حال پر چھوڑ کر چلے گئے. اب بنا کسی سرکار یا سینا کے دو دیشوں کے اس بٹوارے نے بہت ہی خونی، اسی وجہ سے تو پرابلم ہوئی ہے. ایک دیش سے دوسرے دیش میں مائگریٹ کرتے وقت لاکھوں لوگ بے موت مارے گئے، اور کروڑوں لوگوں نے کھلے آسمان کو ہی اپنا چھت مان لیا. اور کئی جنہوں نے کھلے اور آزاد آسمان میں سانس لینے کا خواب دیکھا تھا، انہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ 14 اور 15 اگست کی اس کالی رات کو شاید وہ اپنی آخری سانسیں لے کر الوداع ہونے والے تھے. اس کالی رات کے بعد بھارت کی غریبی بد سے بدتر ہونے لگی تھی، جس کی وجہ سے بھارت کے 70% آبادی کے پاس نہ اناج کا ایک دانہ تھا اور نہ سر پر کوئی چھت. اور اسی وجہ سے اس سمے زیادہ تر لوگ 32 سال کی عمر تک ہی زیادہ سے زیادہ جی پاتے تھے. جسٹ امیجن 32 ایئرس کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی. ان سارے منظروں کو دیکھ کئی اتہاس کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید انگریزوں کے راج میں بھی بھارتیوں کی اتنی بری اوستھا نہیں تھی جتنی آزادی اور بٹوارے کے دوران ہوئی ہے.
जहां भारत इन सारी चीजों से जूझ रहा था, वहीं दुनिया भर के कई देश बड़ी तेज रफ्तार से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन भारत में चाहकर भी ये उद्योगीकरण लाना मुश्किल था, क्योंकि उस समय 88% लोग अनपढ़ थे और जो 12% लोग पढ़े लिखे थे उन्हें भी अंग्रेजों ने सरकारी दफ्तरों में किसी बड़े पद पर नहीं बल्कि क्लर्क की नौकरियों पर रखा था। और इसीलिए अगर अंग्रेज नहीं आते तो शायद आज भारत उद्योगीकरण के तौर पर काफी आगे होता, क्योंकि अंग्रेज आने से पहले विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 27% था। यानी हमारी जीडीपी 17वीं सदी में 27% थी, जो 200 सालों के अंग्रेजी राज के बाद सिर्फ 3% हो गई। अंग्रेजों से पहले भारत की 20% जीडीपी के कंट्रीब्यूटर्स थे मसाले, चाय पत्ती, वुड, कॉटन, सिल्क, सोने चांदी, कारीगरी और डिजाइन किए हुए मार्बल्स, पत्थर्स और वुड की चीजें, इन सब का कारोबार जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। पर अपने राज में अंग्रेजों ने इन सारे इंडियन फैक्ट्रीज, कारखानाओं और कंपनीज को बंद कर दिया, और जो लोग अपनी फैक्ट्रीज को बंद नहीं करते उन फैक्ट्रीज को आग लगाकर राख बना दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज भारत से सारे रॉ मटेरियल्स लेकर इंग्लैंड थे और वहीं पर उन्हीं मटेरियल से सामान बनकर भारत में ही 3 या 4 गुना ज्यादा दाम में बेचे जाते थे। और फिर अंग्रेजों के मटेरियल निकाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर की अवस्था बहुत ही खराब हो गई थी, क्योंकि भारतीयों के पास फैक्ट्री या कंपनियां नहीं थी और लगभग 60% लोगों के पास कमाई का बस सिर्फ एक ही जरिया था, और वो था फार्मिंग यानी कि खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी का ही देश की अर्थव्यवस्था में 54% योगदान हुआ करता था, और इसी वजह से हमारी जीडीपी तभी 3.9% थी वर्ल्ड जीडीपी की। ये सारी समस्या तो थी ही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान अंग्रेजों ने सारे राज्यों को भाषा या कल्चर को मद्देनजर रखते हुए नहीं बांटा था, जिसके कारण लोगों में और ज्यादा कलेश होने लगा था। जैसे कि मुंबई के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के लोग दोनों झगड़ रहे थे, क्योंकि वहां मराठी और गुजराती दोनों बोलने वाले लोग रहते थे। और बस यही सब देखकर पूरी दुनिया का यह मानना था कि बस अपनी इसी विविधता और सही राजनीतिक प्रशासन ना होने के कारण भारत कभी आगे बढ़कर एक विकसित देश नहीं बन पाएगा। पर 1951 में हुए पहले लोकसभा के चुनाव के बाद दुनिया की ये मान्यता और भारत की स्थिति दोनों में कई बदलाव आने वाले थे। सबसे पहला बदलाव तो ये था कि जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर भेदभाव किए बिना हर किसी को वोट करने का समान हक मिलेगा। और सदियों से इन सारी चीजों पर भेदभाव करते आने वाले देश में वोटिंग हुई थी बहुत ही बड़ा और अहम कदम उठाया गया था। और फिर आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू सिविल कोड का बिल पास किया, जिसके बाद सारी विधवा औरतों को अपनी पति की संपत्ति पर समान अधिकार मिला। और जवाहरलाल नेहरू की सोच हमेशा से यही रही थी कि भारत को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना चाहिए, और उनकी इसी सोच के कारण भारत में उद्योगीकरण की फिर एक बार जोरों शोरों से शुरुआत हुई, जिसकी वजह से भारत के अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए और जगह मिली। और इसी के लिए सरकार ने 5 ईयर प्लान की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना और भारत को गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकालना। इस योजना का टोटल बजट था 2378 करोड़, जो खेती बाड़ी, सिंचाई, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इसके कारण इकोनॉमी हर क्षेत्र में डेवलप हुई, और इस 5 ईयर प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट 2.1% था, पर हमने 3.6% ग्रोथ अचीव किया। और इसी के कारण भारत में 1950s के दौरान कई इंडियन इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ, जिसमें से एक था टाटा लोकोमोटिव। ये इंडस्ट्री आजादी के पहले बॉयलर्स और लोकोमोटिव बनाने का काम करती थी, पर उस वक्त भारत में लोकोमोटिव का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था इंग्लैंड, और वो अपने इंडियन कस्टमर्स को टाटा के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो टाटा ने अपने लोकोमोटिव्स और बॉयलर्स को जर्मनी में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और टाटा में बनने वाले बॉयलर्स के कठिन काम के लिए जमशेदपुर से पठानों को बुलाया जाता था। पर वही पठान तो बंटवारे के दौरान भारत छोड़कर भाग गए थे, और बॉयलर्स मार्केट में लॉन्च ही नहीं हो पाए। लेकिन फिर दूसरे वर्कर्स को बॉयलर बनाने के लिए ट्रेन करने में काफी टाइम निकल जाता, और ट्रेन करते वक्त पूरी फैक्ट्री बंद ही पड़ी रहती थी। पर फिर टाटा के दरवाजे पर किस्मत ने दी एक दस्तक, और वो दस्तक करने वाली थी जर्मनी की डैमलर बेंज कंपनी। डैमलर बेंज का बिजनेस पूरे जर्मनी में अच्छा खासा फैला हुआ था, पर उन्होंने कभी जर्मनी के बाहर अपने बिजनेस को एक्सटेंड नहीं किया था। और जब उन्होंने एक्सटेंड करने का सोचा, तो वो चाहते थे कि उनकी शुरुआत टाटा से ही हो, क्योंकि जर्मनी में टाटा ऑलरेडी लोकोमोटिव का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। इसीलिए उन्होंने टाटा से पूछा कि क्या वो ट्रक्स बनाने में इंटरेस्टेड थे। और फिर बस क्या था, इसी एक 10 की जोरदार शुरुआत हुई,
जिसके बाद वो ना सिर्फ बॉयलर्स और लोकोमोटिव्स बनाते थे बल्कि ट्रक्स, रोड रोलर्स, ट्रैक्टर्स, अर्थ इंजन्स वगैरह जैसे हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। और टाटा की इसी तरक्की ने गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट लाने की कोशिशों ने भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बीज बोया, जिसके कारण धीरे धीरे भारत में पॉवर्टी की भी रेट इंप्रूव होने लगी, जो 1947 में 70% से सीधा 2019 में 20% तक गिर गई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन और गरीबी कम होने की वजह से एक बात है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को एक तरीके से टाटा एक कंपनी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे 3.9% से लेकर 2021 में एक एस्टिमेटेड 9.5% तक पहुंच गई है। पर आजाद भारत को सिर्फ इकोनॉमिकल सेक्टर में ही डेवलपमेंट नहीं लाना था, बल्कि सोशली भी भारत के समाज को आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और सोशली आगे बढ़ने का पहला कदम है पढ़ाई, जिस वजह से सरकार ने भी संविधान के आर्टिकल 45 में एक डायरेक्टिव पॉलिसी डाली थी, जिसमें 6 से 14 साल की उम्र तक हर बच्चे को एजुकेशन मिलना कंपलसरी है। और इसी पॉलिसी को 2002 में सरकार ने एक फंडामेंटल राइट भी घोषित कर दिया, यानी भारत में 6 से 14 साल के हर बच्चे को एजुकेशन मिलना उसका एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद पाकिस्तान में वैसे एजुकेशन सरकारी स्कूलों में फ्री है। अब वो सरकारी स्कूल इतने अच्छे होते नहीं है, अब फ्री नहीं है, अब उसमें पैसे लेने लगे। नहीं इतने नहीं इतने लेते, कम लेते हैं, ना होने के बराबर लिए जाते हैं। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कूल्स की भी ठीक हो गई है, लेकिन इंडिया का मुझे नहीं पता कि इंडिया में सरकारी स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे फ्री है या नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। भारत का भविष्य काफी उज्जवल नजर आने लगा था, क्योंकि 1947 में जहां भारत में सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, आज वहीं पर 77% लोगों को पढ़ना लिखना आता था। और इतना पढ़ाई लिखाई करने की वजह से आज उनके पास खेती बाड़ी ही कमाई का एक अकेला जरिया नहीं, बल्कि वो आज अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग देशों में भी काम करने जा पाते हैं। और वैसे ही एक क्षेत्र है मेडिकल का, जहां इतने बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं कि 74 इयर्स में डॉक्टर्स की संख्या 35,000 से सीधा 8 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और इस वजह से आज मेडिकल के क्षेत्र में भारत भी अलग अलग खोजें और रिसर्चेस करके तरक्की हासिल कर रहा है। और इन्हीं खोजें और तरक्कियों के कारण जो 1947 में लोगों की औसत उम्र 32 साल हुआ करती थी ना, वो आज 69 इयर्स हो चुकी है, यानी डबल से भी ज्यादा। अब अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह लगती है, यानी एक क्षेत्र में होने वाले डेवलपमेंट के कारण दूसरे क्षेत्र में भी डेवलपमेंट आता है। और इसीलिए तो जिस देश को पूरी तरह कंगाल करके इंग्लैंड चला गया था, उसी देश ने 2019 में आर्थिक विकास में इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया। पर अनफॉर्चुनेटली साल 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक ने बाकी देशों के मुकाबले भारत का ज्यादा नुकसान किया, और इसीलिए 2019 में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5th नंबर पर थे, पर 2020 में हम उनसे पीछे 6th पर आ गए। पर अच्छी बात तो यह है कि रिपोर्ट्स के अनुसार भारत को फिर से 5th पोजीशन पर आने के लिए बस 4 ही साल लगेंगे, और तो और 2030 तक भारत 3rd पोजीशन पर होगा। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इंडिया इतनी सारी तरक्की आजादी के बस 74 इयर्स में ही कर चुका है। I mean, खुद ही देख लो, हमारी जीडीपी 1950 में 2,939 बिलियन रुपीस से आज सीधा 1,40,776 बिलियन रुपीस हो चुकी है। और इन सारी चीजों के पीछे किसी एक चीज या इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि इस तरक्की का कारण है कि हमने लगातार हर क्षेत्र में डेवलपमेंट लाने की कोशिश की, हमेशा पुश करते गए, दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छूते गए, एक साथ मिलकर। और शायद इसीलिए 1998 में अपनी किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगले 2 दशकों में इंडिया वर्ल्ड का अगला सुपर पावर बनेगा। और सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम ही नहीं, पूरी दुनिया के इंडिया से यही एक्सपेक्टेशंस है। पर फिर अचानक से The breaking news is about the confirmed coronavirus। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि केरल में दोबारा पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। आ चुका है ये कुछ दिन की किस्मत और तरक्की के रास्तों पर बरसने लगा। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।
और मार्च 2020 में अचानक पूरे देश को लॉकडाउन में डाल दिया गया और इसी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण इंडिया की इकोनॉमी बाकी किसी देश की इकोनॉमी से ज्यादा गिरी। अप्रैल और जून के दौरान इंडिया की जीडीपी 23.9% से गिर गई और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से 2020 के एंड तक जीडीपी और 10.3% गिर गई। और ये सेटबैक इतना गंभीर है कि इससे बाहर निकलने के लिए कोविड के बाद इंडिया को कई सदियां लग जाएगी। पर अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस ग्राफ में जैसे दिखाया गया है वैसे बढ़े तो हम इंडियंस और क्या कर सकते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो फ्रेंड्स। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ यार वीडियो मतलब इसकी गेट्स फ्लाई फैक्ट्स की हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव थी और मतलब मैं यही बात शुरू में भी कर रहा था और अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब ये बंदा ना उसी को कसूरवार ठहराता है जो होता है। मतलब अभी भी इसकी वही बात ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी गलत है, इंडियन गलत है या मतलब वही बात जो की गई है शुरू से और हमें भी पता है और बहुत सारे जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि अंग्रेज़ों का एक प्रॉपर एक प्लानिंग्स थी, एक डिवाइड एंड रूल्स वाला, क्योंकि उनको यहाँ से निकाला जा रहा था तो उन्होंने भी यही सोचा कि बस किसी तरीके से इनको भी तोड़ के जाए। उनको लगा कि आपस में लड़ेंगे और आपस में लड़के हाँ लड़ते ही रहेंगे और देखो वो हो रहा है और बहुत कुछ माइंड बना के गए थे पाकिस्तानियों में, कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ इंडिया में भी ऐसे हैं जो लोग जो माइंड बना के थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते नहीं है, जो अभी तक लड़ रहे हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में भी कुछ ऐसा हो रहा होता है। खैर वो कमेंट बॉक्स में तो चलता ही रहता है। खैर अगर आप लोगों ने कोई भी वीडियो सजेस्ट करनी हो तो लाजिम कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो इंस्टाग्राम के लिंक हम दोनों के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ कर सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताने आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। और हम लोग तो हमें रिएक्शन का पता नहीं क्योंकि हम लोग बहुत गौर से मैं खुद बहुत ज़्यादा अब सैम भी कुछ बोलने वाला था लेकिन फिर बोला नहीं क्योंकि वो तेजी से बोला तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो बात ना मतलब मुझे सुनते हुए वो पूरी बातें इतने मज़े की लग रही थी कि तो मैं सुनना चाह। और ये एक तरह की रियल स्टोरीज है जो हम लोगों के एक तरीके से जो पुराने, और हम लोगों को अच्छा भी लग रहा था कि इंडिया मतलब इतना तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ेगा। और जब उन्होंने बोला कोरोना आ गया तो वी वर लाइक। खैर वीडियो बहुत कमाल की थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? और हम लोग एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।